કાજલ બુલેટિનમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું શહાના સેઠવાલા। આજના મોડર્ન યુગમાં વાલીઓ પોતાના બાળકોને એજ્યુકેશન માટે આર્થિક રીતે સક્ષમ ન હોય અને તેઓને અભ્યાસ અર્થે મદદરૂપ થાય તે માટે ઝિદની ઇલ્મા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આજે 16મો વાર્ષિક સ્કોલરશિપ અર્પણ કાર્યક્રમનું આયોજન વડોદરા શહેરના MES બોયઝ યાકુતપુરા ખાતે યોજવામાં આવ્યો હતો। ઝિદની ઇલ્મા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓને મદદરૂપ થવા સ્કોલરશિપ આપવામાં આવતી હોય છે। તેને ધ્યાને લઈ ફાઉન્ડર ડોક્ટર JS બંદૂકવાલાએ 16 વર્ષ અગાઉ આ સંસ્થાની શરૂઆત કરી હતી। આ વર્ષે ઝિદની ઇલ્મા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ પાસે સ્કોલરશિપ માટે 2600 થી વધારે એપ્લિકેશન આવી હતી, જેમાંથી 910 એપ્લિકેશનને તેઓ દ્વારા હેન્ડલ કરવામાં આવ્યું હોવાનું જાણવા મળ્યું હતું। આજના કાર્યક્રમમાં મુખ્ય મહેમાન પદે ગુલામ મોહમ્મદ શેખ ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આ પ્રસંગે ડોક્ટર જિમ્મી દાભી તેમજ સફી લોખંડવાળા સહિત ઝિદની ઇલ્મા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટીઓ સહિત અનેક મહાનુભાવો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। સમગ્ર કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા ડોક્ટર મોહમ્મદ હુસૈને તનતોડ મહેનત કરી હતી। રિપોર્ટ સાદિક કાજલવાલા સાથે અઝીઝ ધુપેલવાલા। શ્લોક 114 મેં જે કંઈ લીધું છે એ અંગ્રેજી ટ્રાન્સલેશન છે, એટલે માફ કરજો। આ એક કુરાનની દુઆ છે, તેનો અનુવાદ થાય છે, ઓ મારા ખુદા, મારા જ્ઞાનમાં વધારો કરો। જે એક વિનંતી છે જે સર્વોચ્ચ અલ્લાહ, જે જ્ઞાન અને શાણપણના અંતિમ અને ઉત્તમ સ્ત્રોત છે, તેમની આગળ નમ્રતા ભરી દુઆ માગે છે। 30 ના અંદર અત્યારે ઇન્ફોર્મેશન ટેકનોલોજી ફક્ત 2% એનર્જી એટલે ઇલેક્ટ્રિસિટી વાપરે છે। 2030 ના અંદર એ 10% વાપરશે અને દુનિયાના અંદર એટલી કેપેસિટી હજી જલ્દી થતી નથી। ગ્રીન એનર્જીની વાત કરીએ, મને બહુ કહેવાની જરૂર નથી, પરંતુ હું 2-4 શબ્દો જ કહીશ ગ્રીન એનર્જી માટે। ગ્રીન એનર્જી છે, પરંતુ એ જે ટ્રેડિશનલ ઇલેક્ટ્રિસિટીનું ઉત્પાદન કરી રહ્યા છે, જેવી રીતે કોલથી, ઓઇલથી, નેચરલ ગેસથી, એટોમિક એનર્જી, એવી રીતે ગ્રીન એનર્જીના અંદર એટલું બધું ઉત્પાદન થઈ શકતું નથી। દરેક વાર કોઈ ને કોઈ શાયરી અહીંયા રજૂ થાય છે, એટલે એ પછી મને લાગે છે કે આપણામાંથી કેટલા કવિઓ નીકળ્યા। જરાક વિચાર કરો કે આપણામાંથી કોઈ શાયર થવા માંગતો હોય તો એને આપણે મદદ કરશું કે નહીં। મને એમ લાગે છે કે આપણે જો વિચાર કરીએ તો આવું ઘણું બધું કરવાની આપણા ટ્રસ્ટમાં, આપણા જીવનમાં, આપણા બધા સમાજમાં આ શક્યતાઓ છે અને એ શક્યતાઓને આપણે જેટલી વધારીએ તેટલું ઓછું છે। भी है कुछ चीजें जिनमें हमें ध्यान देने की जरूरत है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देता हूँ डॉक्टर रफिया मीठा पीर जी को, वो स्टेज पर आए। ये कुछ बच्चे हैं हमारे जो स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं और अपना एक मकाम पैदा किया है। डॉक्टर रफिया मीठा पीर जी कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हैं और अभी सिद्धपुर में सैयद इतरता फातिमा हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस दे रहे हैं। बेटा आइए स्टेज पर। मैं इंतजार करता हूँ हमारे चीफ गेस्ट गुलाम सदर मोहतरम जनाब गुलाम शेख सर व स्टेज अफरोज खुसूस मेहमान और वो हाजिरी हैं जलसगा, आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी छोटी सी स्पीच का आगाज एक मशहूर शेर से करना चाहती हूँ कि मैं तो चल पड़ा था जानिबे मंजिल, मैं तो अकेला ही चल पड़ा था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। कोऑपरेशन और इंग्लिश गुजराती मुस्लिम इन शिकागो एरिया स्टूडेंट को हेल्प ऑल्सो लुकिंग इट यहाँ इंडिया में भी जो कुछ हो रहा है उसमें जो भी कुछ हेल्प होती है उसमें वी सेंड सम फंड्स। दिन में इल्म जो है सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। इल्म के बगैर दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता है। अब इल्म के लिए हमारी कम्युनिटी में स्पेशली, वैसे तो सारा पोजीशन एक ही है,
हमारी कम्युनिटी में मोर देन 50% पेरेंट्स ऐसे हैं कि आज के ज़माने में अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते, उन्हें कहीं न कहीं मदद की ज़रूरत होती है। इसी ज़रूरत को महसूस करके हमारे डॉक्टर बंधुवाला साहब ने जो जी निर्मा के फाउंडर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस जी निर्मा को शुरू किया था कि जिससे कि बच्चों को मदद, फाइनेंशियल मदद किया जाए, उनको मोरली मदद किया जाए, उनकी पढ़ाई के लिए जो भी बुक्स वगैरह की जरूरत होती है, एजुकेशन मटेरियल की जरूरत होती है, वो उनको दी जाए। उसके सिलसिले में ही हम लोग डॉक्टर साहब के बाद में इस काम को आगे जारी रखे हैं और अपनी तरफ से सारे ट्रस्टीज, बाकी और एनजीओ हमारे कोशिश करते हैं, हमारी मदद करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मदद दे सकें। इस साल हमारे पास 2600 एप्लीकेशन से ज्यादा आई थी। हमने उनमें से 910 एप्लीकेशन ही सैंक्शन कर पाए क्योंकि फंड की लिमिटेशन थी। तो मैं ये दरख्वास्त करना चाहूंगा अपनी कौम से कि ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ के हमारी मदद करें, जिससे अगली सालों में इस जरूरत को जितना हो सके हम पूरा कर सकें। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि कौम का, देश का स्टैंडर्ड एजुकेशन कैसे आगे आ सके, कैसे बढ़ सके, हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के आगे चल सके। मैं आपसे जानना चाहूँगा, और एजुकेशन के फ़रोग के लिए हम सिर्फ स्कॉलरशिप का भी काम नहीं करते, बल्कि जिन्नी इल्मा ने बड़ौदा शहर में 2-3 जगह लाइब्रेरी भी शुरुआत की है। एक जगह हाथी खाना में और एक वारी विस्तार में, जो पूरा दिन लाइब्रेरी बच्चों के लिए ऐसी लाइब्रेरी शुरू की है और वो चलती है। दूसरी बात, जो एक वेंकी प्रोजेक्ट है जिसमें 10 बच्चों को हम फ्री ऑफ चार्ज स्कूल में पढ़ाते हैं, उसकी फीस वगैरह देते हैं। इस तरह से एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप के अलावा ये भी काम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके सवाल से पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया के लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि इस्लाम अपनी पहचान इल्म से रखता है, इसलिए कि जब तक इल्म नहीं आता है इंसान अपने पैदा करने वाले को नहीं नहीं पहचान सकता है, और जब उसको नहीं पहचानेगा तो उसकी बातों पर अमल करना उसके लिए दुश्वार हो जाएगा। इसलिए इस्लाम की सबसे पहले वही जो आई वो भी इक़रा के जरिए इल्म का पैगाम ही था, और लोगों को आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, इसलिए पहले कहा कि इक़रा। इसलिए कि मुसलमान लोगों के लिए दाई बनकर, अब दावत में सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी को कुछ खास चीज सिखाएं, बल्कि दुनिया की जरूरत में आने वाली हर चीज की तरफ जायज नाजायज, प्रोहिबिटेड है कि नहीं, वो सारी रहबरी भी करें। इसलिए इस्लाम ने सबसे पहले इक़रा का पैगाम दिया। अब उसमें इक़रा के पैगाम में मर्द को अलग और औरत को अलग तो रखा नहीं जाएगा। कुरान सबके लिए है, और सबके लिए होने की वजह से मर्द दुनिया में बसने वाला कोई भी हो, मुसलमान हो या कोई दूसरे मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, इसी तरह औरत भी। तो मुसलमान या गैर मुस्लिम, मर्द और औरत दोनों एजुकेशन को हासिल करेंगे, लेकिन वो एजुकेशन जिसको कुरान की आयत में आगे बताया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, जो हमारा क्रिएटर है, हमारा पैदा करने वाला है, उसके साथ जुड़ा हुआ हो। तो आजकल जो मॉडर्न एजुकेशन का नाम दिया गया, जिस एजुकेशन में बजाय तरबियत और तालीम के सिवाय फहाशी और उरियानियत के कोई और चीज सिखाई नहीं जाती, पढ़ाए जाने वाले दिन कम और सेलिब्रेट किए जाने वाले दिन ज्यादा होते हैं, जिसमें हमारी बच्चियों को या बच्चों को तरबियत से हटाया जाता है, तो वो तो एजुकेशन नहीं है, वो तो नरी जहालत है और गुमराही है। इसलिए उसको मॉडर्न भी नहीं कहा जाएगा। इस्लाम मॉडर्न एजुकेशन का मुखालिफ है ही नहीं। मॉडर्न का मतलब ये है कि जो रोज पेश आने वाली जरूरत की रहबरी कर सके वो इल्म। अब वो इल्म मॉडर्न है, लेकिन इन लोगों ने फहाशी और उरियानियत को मॉडर्न कह दिया। जिसको इल्म कहा ही नहीं जा सकता वो तो नरी जहालत है। उसी को खत्म करने के लिए इस्लाम आया। अब हमारी जो बहनें जो स्कूल में भेजी जाती है, और उसके बारे में आपने सवाल किया कि भाई उनके साथ तहजीब व तरक्की तरबियत का मसला खड़ा हो जाता है, तो सबसे पहले मैं मुसलमान ताजिरों को, मालदारों को, जिनके पास थोड़ा बहुत भी पैसा अपनी बैंक में जायद पड़ा है, 25,000 रुपये भी अगर किसी के पास बैलेंस है, तो उसको चाहिए कि वो 5,000 रुपये भी एजुकेशन के नाम पर निकाल कर हमारी बहन बेटियों को लेडीज टीचरों के साथ पढ़ने का एक एनवायरनमेंट खड़ा कर दें, और उनको दुनिया के जितने भी उलूम हैं जिसमें इंसान बनकर जिंदगी गुजार सकता है,
तो वो सारे उलूम को सीखने सिखाने के लिए मौके फराहम करने चाहिए, इसलिए कि एक माँ जब पढ़ती है तो पूरी नस्ल पढ़ती है, और जब माँ पढ़कर नस्ल को पढ़ाएगी तो मिल्लत भी तरक्की करेगी और मुल्क भी तरक्की करेगा। लिहाजा हमारी बहनों को हम इस तरह के मॉडर्न एजुकेशन से दूर तो नहीं करेंगे, लेकिन जो मॉडर्न एजुकेशन अभी दिया जा रहा है, जिसमें एक माँ को डर रहता है कि बच्ची जब तक घर वापस ना आए पता नहीं उसका क्या हाल होगा, तो वो एजुकेशन नहीं है, वो तो नरी जहालत है, बल्कि एक कुआं है जिसमें लोगों को डाला जाता है। लिहाजा मॉडर्न एजुकेशन का इस्लाम मुखालिफ नहीं है, लेकिन मॉडर्न का मतलब समझना जरूरी है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें